Hello, people. Hope you are doing well. As I have promised, I will deliver the lecture today, but due to some power outage problem, I wasn't able to complete the recording and upload the video. But yes, I am trying my best to cover it by today night and upload the video as soon as possible. So, as you all know, we have completed the paper of 2023 and 21 of paper 1, and yes, of paper 2 we have completed history paper of 2023 till 2016. I have also promised to upload the video of 2015 and I will upload it in 1 or 2 days. Yes, so without wasting much of your time, let's get started. So we are doing paper 1 set A of 2020. The total questions 50 and marks 100. Yes, and there is no negative marking. Up, let's get started without wasting much of the time. So here the very first question, reflective teaching is a dash. So reflective teaching is a cyclic process of thinking about teaching. Yes, reflective teaching. We have solved 2 papers, and in the paper of 2023 there was mention about reflective teaching and memory level. In paper 21 there was about understanding level. Again there is reflective teaching. So we can see the topics are asked every alternative year. It might be possible this year also they can ask reflective teaching, or they may ask understanding memory. We have to solve, we have to be confident enough, and just keep this thing in mind that कुछ भी हो जाए, ये जो क्वेश्चन है इसमें तो मार्क्स जाने नहीं चाहिए. यस, मैथ्स वाला पार्ट है, लेंथी पार्ट है, वी कैन अवॉइड इट, बट नॉट दिस पार्ट. So here teacher reflects on what is being taught by self, like in class. मैं क्या सिखा रही हूँ, मैं इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करूँगी, मैं इसको वापस से जाकर चेक करूँगी कि मैं क्या सिखा रही हूँ. Yes, it is a cyclical process because teacher continuously thinks about his or her teaching and ways to improve it. I will try to improve my videos, my content as much as possible so I can deliver the best. That is reflective teaching. Moving for the next question. A teacher should identify dash and teach accordingly. Economic conditions of student, individual differences among student, economic condition of parents, individual differences among parents. Why the teacher will get concerned about the economic condition? Its only duty is to teach. So individual differences among students, like कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई बच्चा बहुत वीक होता है, कोई मीडियम होता है, तो उन सबको मैच हो सके ऐसा पढ़ाना. दैट इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट और एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टीच देम अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वॉज ड्रॉप्ड बिकॉज स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ dash channels devoted to telecasting of high quality educational programs. Here the answer is, the question was dropped, but there are total 40 direct to home channels, 40 direct to home channels to telecast. They run 24/7 with help of GSAT 15 satellite, and new content is uploaded for 4 hours and the same content is repeated 5 or more times. तो बच्चे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी जाकर देख सकते हैं. एंड द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NCERT, इज IGNOU, IITS, NPTEL, CEC, NIOS and UGC, and this is maintained by InfilmNet, that is Information and Library Network Center. Okay, additional information about Swayam Prabha, and it is run by Swayam. See, again this year there was question on Swayam. That is what I am saying. Swayam को रट लो. A traditional teaching support system includes whiteboard, smart board, digital board. D, 3-dimensional model. Answer is 3-dimensional model. अभी 3D जो मॉडल्स है वो
कैसे, मतलब like some objects were kept in classroom, just like a globe, yes, then any DNA structure or some animal structure, something like that, it was there in the traditional schools. So whiteboard जिस पर हम अभी निकले हैं और जिस पर ब्लैक पेन से हम लिखते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आर अगेन डिजिटल बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स, digital boards, these are modern. 3-dimensional models are traditional. I know many students have got confused in whiteboard and 3D model because on Google and on some sites there is whiteboard, but in our answer key, official answer key, the answer is 3-dimensional model. Fifth, a teacher goes through the students' notebooks and gives remarks. This is called evaluation. Yes, option C, evaluation. That is process where judgment is passed on basis of some predetermined standards. To what extent objectives achieved and to what extent. Okay, तो evaluate करना like जितना होमवर्क दिया है उतना किया या नहीं, ये चेक करना, या जो लिखाया है वो सही है या नहीं, ये evaluate करना, predetermined standards. Yes, and on Google and sites there is the mention of process assessment, that is process of evaluating, measuring, grading, documenting academic progress and giving feedback. Yes, assessment दिया है काफ़ी जगह, but in our official की it is evaluation. Now question number 6, Socrates has given dash method of discovering the truth. It is the dialogue method. Yes, it is also known as Eleatic method. Might come in the exam, so लिख लेते हैं. Eleatic method or Elencus. Socrates debate method. A type of cooperative argument dialogue. Now question number 7, experimental researches are aimed to. Question 7, experimental researches are aimed to study the application of theory. Yes, experimental research is research that is conducted with the help of scientific approach and uses two sets of variables. The main elements are control, manipulation, random selection, random assignments. Okay, so experimental research के बीच there are it is like establishing association between variables, but its main aim is to study the application of theory, like theory कितनी practically applicable है in our life, in practical life. That is the main aim. Okay, scientific approach and uses two sets of variables. Yes, association between variables. Okay, limitations. Question 8, limitation laid down by the researcher are called delimitations. Option B, delimitations. These are boundaries of the research study based on what to include and exclude, and this delimitations makes study more manageable and relevant. For example, objectives, research questions, variables, theoretical objectives adopted, population chosen. These are the delimitations. Like जो हमारे रिसर्च को एक बाउंड्री, एक लिमिट देते हैं, उन्हें डिलिमिटेशंस बोलते हैं, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. ओके, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50th percentile and dash आर सेम. 50th percentile यानी कि मिडल वाला, और हमने लास्ट पेपर में देखा था कि जो मिडल वाला होता है सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीडियन. Yes, median is the central tendency. And let's revise quartile deviation. We have discussed in 2023 quartile deviation.
is a robust measure of variability, also known as interquartile range, difference between first and third quartile in a table. yes, अभी फिर से हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, मीडियन. वैसे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा यूज्ड टू डिपिक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of each outcome which has possibility of repeatable events. yes, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं हम पूरा डाटा और उसमें कितने बार रिपीट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है रिपीट होने की, नंबर्स, डेटा, उसके बारे में होता है ये. सो वी यूज समराइजिंग categorical variables for any frequency distribution. 50th percentile is equal to median, that is positional average. वैसे क्वार्टाइल का क्या रहता है, डाटा इंटू 4 पार्ट्स, और डिसाइल का डाटा इंटू 10 पार्ट्स. और अगर एक फॉर्मूला है, अगर परसेंटाइल 50 है, ओ सॉरी व्हाट इज दिस, परसेंटाइल 50 इज इक्वल टू, परसेंटाइल 50 रहता है डिसाइल 5 विच इज क्वार्टाइल 2 विच इज क्वार्टाइल 2 विच इज मीडियन. सी P50 D5 क्वार्टाइल 2 मीडियन. ये है फॉर्मूला बाय डेफिनेशन. A researcher uses data of an earlier research paper and publishes a new research paper. This is unethical. If you don't give the proper acknowledgement and all, then it is unethical, because there are some research ethics which one has to follow, like honesty, publish data responsibly, and respect the intellectual property of others. Now this is the passage, and it is of role of higher education is unquestionable in building a modern economy and an equitable society, and the scope of higher education in India has been steadily growing. According to 12th Fifth Year Plan, the allocation of public spending on universities and other higher education was rupees 19,800 crores. The New India Niti Aayog vision has mentioned a fully literate population as one of its benchmarks. Since the last decade, the higher education sector has been occupying a dominant position in the economic planning. The government policy in the content aims to attain expansion, excellence, and equity, taking higher education initiatives which can enable India to match up to global standards. Then, while higher education equips people with relevant skill sets in open labor market, making them upwardly mobile against socio-economic parameters, the same is not reflected in the academic labor market today. Today, a significant proportion of highly educated professionals are stuck in a volatile academic ecosystem. They are recruited on ad hoc basis, and there is no formal law to govern the terms and conditions of their contractual engagement. The Contract Labour Act 1970 primarily covers blue-collar jobs. Incumbents keeping their white-collar counterparts outside its ambit. The growing number of universities cannot alone fulfill the criteria of expansion with negative growth in absolute increase in employment. The growth in enrollment rate of students is expected to reach 25.2% by 17-18 from 17.9 in 11-12. The question is if the targeted growth in the enrollment rate is aligned with the number of quality teachers in higher education. So I have read the passage very fast. You can go and check it on my Telegram. I will upload the paper there. Now, what does the author mean when he says that since the last decade the higher education sector has been occupying a dominant position in the economic planning process? So the answer is option D. Comparatively more financial support is given to higher education sector during the last decade. 12. The policy makers in India are taking steps to increase expenditure towards higher education sector because
they aim at enabling India to the match up to the global standards. लास्ट लाइन थी ना वहाँ पर. The attitude of author towards the teachers is sympathetic. कि बेचारों को जॉब नहीं, मतलब उनको ब्लू कॉलर वाइट कॉलर के बीच में ला लिया है, जॉब नहीं है. सो the author says that today a significant proportion of highly educated professionals is stuck in a volatile academic ecosystem because there is lack of formal laws to govern the terms and conditions of contractual engagement of highly educated professionals. Now for 15, there is growth in number of universities, there is growth in absolute increase in the employment. No, there is not growth. So A, statement 1 is true but 2 is false. Now communication. While defining communication, also you can first read the questions and then read the passages, जिससे कि जो to the point है उतना ही पढ़ते हैं ज़्यादा फोकस में, तो टाइम भी बचता है. I prefer this method that I will read questions first and then I will go through the passage to find the answers. While defining communication, Miller focuses on behavioral changes of receiver. ऑप्शन ए 16 का है. ऑप्शन ए मिलर ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन बाय जॉर्ज ए मिलर, जिसमें देयर आर मिलर्स लॉ. In order to understand what another person is saying, you must assume that it is true and try to find out what it could be true of. Like पहले उनको समझो और फिर उन्हें जो भाषा समझ में आए उस भाषा में बात करो. जैसे बोलते हैं ना, जो भाषा में तुझे समझेगा मैं उसी भाषा में तुझसे बात करूँगा. वैसे इट इज़ इंग्लिश में ऐसा बोला गया है उसको सीधा सीधा. दो सिचुएशंस इन, वैसे कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बाय मिलर क्या है, ये भी एग्ज़ाम में आता है काफ़ी बार, तो ध्यान दीजिए. दो सिचुएशंस इन विच अ सोर्स ट्रांसमिट्स अ मैसेज टू अ रिसीवर विथ कॉन्शियस इंटेंट टू अफेक्ट द लेटर्स बिहेवियर. सोर्स से मैसेज ट्रांसमिट हुआ रिसीवर को विथ कॉन्शियस माइंड, मतलब होशो आवाज़ में, टू अफेक्ट द लेटर्स बिहेवियर. लाइक या तो उसको हैप्पी कर सकता है या उसको सैड कर सकता है, एंग्री कर सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके. Theory of communication by George A. Miller. Now serial functions of 17th. Serial functions of sender in communication cycle are as follows. Option A, collection, formulation, encoding, projection. Formation of idea by sender, transmission through channel or medium, receiver receives, gives feedback as message or signal in given time. तो collection कलेक्ट करो, फॉर्मुलेट करो, देन इनकोड इट एंड देन प्रोजेक्ट. दिस आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ 18. द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड ऑप्शन बी मीडिया. यस, ऑप्शन बी मीडिया. मीडिया और चैनल थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड. 19th. Which of the following is one of the communication based on number of parties involved? अभी communication are divided in 3 as according to number of parties involved, based on formality and other. So parties involved में आता है internal and external, और internal में आता है vertical and horizontal. तो हमारे यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. बाकी फॉर्मल इनफॉर्मल किस में आता है, फॉर्मेलिटी, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी. ये है फॉर्मेलिटी के, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी. ये है इंटरनल का पार्ट. इंटरनल भापा. एंड पर्सनल किस में आता है, अदर में. 3 टाइप्स होते हैं. तो ये दो तो फॉर्मेलिटी के बेसिस पर है. ये इंटरनल, एक्सटर्नल, बेस्ड ऑन द नंबर पार्टीज इन्वॉल्व.
Characteristics of mass media communication are large number of audiences, heterogeneous audiences, scattered audiences, and absence of direct feedback. मतलब बहुत सारे लोग हैं तो कैसे मैसेज आएगा, और आया भी तो करेक्ट वे में आएगा, कैसे कब तक आएगा नहीं बोल सकते. मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमिट मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड ऑडियंस. इट इज़ मोस्टली वन वे as there is no direct feedback and it is done through मोबाइल भी कर, आजकल तो मोबाइल से होता है काफ़ी, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. नाउ it is question of maths. It is a little bit question from usual. Consider the following set theoretic expressions x, y and z where u union and intersection, उल्टा u intersection and superscript c is set complement. Yes. तो इसका आंसर है ओनली x and z रिप्रेजेंट सेम सेट. तो अभी ये कैसा है ना, इसमें फॉर्मूलाज दिए हैं, टोटल 8 फार्मूलाज है. ओके, मैं फार्मूलाज बताती हूँ आपको डायरेक्टली. कैन यू सी द फार्मूलाज? यस. प्रॉपर्टी 1 a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a. प्रॉपर्टी 2 a and intersection b is b intersection a. Then property 3 a intersection a raised to c is equal to phi, वो सिंबल को phi बोलते हैं. प्रॉपर्टी 4 a यूनियन a raised to c is equal to यूनियन. Then a union b intersection b union c is equal to a union b intersection c. Then 6 a intersection b union b intersection c is equal to a intersection b union c. Then a union phi is equal to phi union a is equal to a. Then a union a intersection phi is equal to phi intersection a is equal to a. ये हो गए 8 फार्मूलाज प्रॉपर्टीज. अभी x दिया है पाई p यूनियन p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r, ये हो गया पहला इक्वेशन. देन y दिया है p इंटरसेक्शन q यूनियन p इंटरसेक्शन r यूनियन q इंटरसेक्शन r c. तो अभी इसको हम यूजिंग प्रॉपर्टी 6 डायरेक्टली प्रॉपर्टी 6 यूज़ कर लेंगे. तो p इंटरसेक्शन हो गया है q यूनियन r यूनियन q इंटरसेक्शन r c. ये जो लास्ट वाला है p कॉमन निकाल लिया है, और p कॉमन निकालने के बाद में p के बाद में इंटरसेक्शन भी कॉमन ले लिया है, और जो यूनियन था q और r का बना दिया है. अभी z के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है. q यूनियन p रेज टू c इंटरसेक्शन p यूनियन r यूनियन p यूनियन q इंटरसेक्शन p रेज टू c यूनियन r. अभी आप नीचे के स्टेप्स देख लीजिए. इज इट विजिबल प्रॉपरली? यूजिंग p6 p3 यूजिंग p1 एंड p7 यूजिंग p5 यूजिंग p3. देन आंसर आता है z इज इक्वल टू q यूनियन p यूनियन r इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन r. बेसिकली इसमें q को कॉमन कर दिया गया है. ओके, q को साइड में कर दिया गया है. हेंस फ्रॉम इक्वेशन एक्चुअली एक भी मैच नहीं करता है, बट अभी आंसर की में ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 3 कि वो मैच करते हैं. ओके, एंड we have to go through the answer key of UG offset. So I will just say that you can drop such questions. ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है ड्रॉप. In our answer key the option is given C, but when I tried to find the answer no two expressions represent. Actually नहीं करते, but अभी I don't know what exactly set has used.
सो यू कैन ड्रॉप इट इफ़ यू वांट. सॉल्व भी किया तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे. यू कैन सॉल्व. कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रिंग ऑफ पेबल्स ऑफ 3 कलर्स ग्रीन, ब्लू एंड रेड. तो अभी क्या दिया है, विच 2 of them will give us identical necklace prepared by just making the first and the last pebble of the string adjacent. ओके, अभी इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट एंड लास्ट को एडजेसेंट बनाना है. अभी यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जी जी है, यहाँ पर भी जी जी है एडजेसेंट में. ओके, देन उन्होंने बोला है फर्स्ट एंड लास्ट पेबल्स ऑफ द स्ट्रिंग एडजेसेंट. अगर हमने जी और जी को यहाँ पर ला लिया, लाइक लेट अस राइट हियर जी 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 जी, ओके, बी डबल आर बी आर बी बी आर. और अभी इसके लिए सपोज हमने जी जी से स्टार्ट करना है. ओके, हमने जी जी से स्टार्ट किया, जी जी बी आर आर बी बी आर. अभी चेक कीजिए कौन से 2 मैच कर रहे हैं एक्स से. अगर ये 2 भी मैच कर रहे हैं तो हम वो कंसिडर कर लेंगे. एक्स से मैच कौन कर रहा है, जेड. सो इट इज़ ऑप्शन सी, एक्स एंड जेड. सी जी जी बी आर आर बी आर. 2 के सेट्स बनाओ, ऐसे ऐसे 2 के सेट्स ले सकते हैं. ओके, ईजी है, इतना हार्ड नहीं. द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ बोट इज 22 kgs. एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन एंड पैडेड इज 24 kgs. अभी इसमें पैडेड ऐड हुआ है तो 24 kgs. व्हाट इज़ द वेट ऑफ द पैडेड. पैडेड का वेट क्या है. अभी एवरेज इंडिविजुअल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सम अपॉन नंबर, दैट इज टोटल अपॉन नंबर. ओके, अपने पास में बच्चे कितने, 25 इंटू 22. wait, I can solve this with some other way. (25) into 22. 25 into 22 is equal to 550. ये हो गया पहले का सम. अभी एक और ऐड हुआ है P, जो पैडेड है उसका हम कंसिडर करेंगे P. तो सम ऑफ वेट प्लस पैडेड इज इक्वल टू, अभी एवरेज इंटू नंबर, जो नंबर है टोटल, जो यहाँ पर हमने लिखा था, ये देखो एवरेज का फॉर्मूला है ना, ए इज इक्वल टू टोटल अपॉन एन. तो अभी क्या करना है, 20 यहाँ पर 25 इंटू 22 550 हो गया. तो 550 प्लस P माने पैडेड इज इक्वल टू 24, जो कि नया एवरेज है, इंटू 26, क्योंकि हमारे पास टोटल 25 पहले थे एंड 1 ऐड हुआ तो 26. ओके, देन 550 प्लस P इज इक्वल टू 600, sorry 624. सो P इज इक्वल टू, एकदम बेसिक बता रही हूँ मैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, 624 माइनस 550 कितना होता है, 74. सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा. P इज इक्वल टू 74 इज आवर आंसर.
आई विल अपलोड इट ऑन चैनल पे अपलोड कर दूँगी मैं ये PDF। एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय नंबर, वो एक बेसिक फार्मूला से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, वी डोंट हैव मच टाइम, हम फटाफट सॉल्व करेंगे। दयानंद प्लांटेड शुगर केन इन 1/3 ऑफ हिज फार्म, ग्राउंडनट इन 1/4 ऑफ हिज फार्म एंड जवार इन द रिमेनिंग फार्म ऑफ 25 acres। हाउ मच इज द टोटल फार्म इन एकर्स टू दयानंद। अभी उन्होंने क्या किया था, शुगर केन लिया है 1/3, देन ग्राउंडनट लिया है 1/4 एंड जवार कितने में है 25। हमें बचा कितना है उनके पास में 25 बचता है। अब सॉरी और हमें टोटल निकालना है, टोटल इज इक्वल टू x। तो अभी x/3 प्लस x/4 प्लस 25 इज इक्वल टू x। अभी LCM आता है 4x प्लस 3x, इधर 12 प्लस 25 इंटू 12 300 बाय 12 इज इक्वल टू x। तो 4x प्लस 3x 7x प्लस 300 इज इक्वल टू 12x। ये जो नीचे का 12 था, ये टोटल, ये एक बार सिंगल हो जाता है ये पूरा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 300 में से 300 ऐसे रहेगा, 12x माइनस 7x, सो 300 इज इक्वल टू 5x। Why this pen is not working properly? 5x, x is equal to 300 by 5, कितना होता है 60। ओके, सो आवर आंसर इज, टोटल कितना है उनके पास 60। ओके, समझा। Now, what sum is to be invested for 2 years at 14% interest rate, compounded annually to grow to rupees 5458.32, 5458। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यस, इसमें टाइम कितना है 2 hours और 2 years, इंटरेस्ट 14%, अमाउंट 5458.32। तो जो हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 वाला जो फॉर्मूला है, सी अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला है। अमाउंट दिया है, यहाँ पर अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है ना 5458.32 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें निकालना है P इंटू 1 प्लस 14%, 14/100 करेंगे इसको, 14/100 इंटू 100, 14/100 इंटू 100, 14/100 इंटू 100, यस, हाँ यस, रेज टू 2। ये टोटल को, सॉरी,
ये टोटल को रेज टू, ओए अरे सो हियर एज यू कैन सी मैंने ये लिखा है यहाँ पर 5 और हमने पहले तो 14% का 100 में किया, तो जो हमारा 114 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 आया था, तो उससे 100 को 1 प्लस से मल्टीप्लाई किया, तो 100 प्लस 114 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू 2, तो फिर उसका हमने निकाल दिया 2 के टेबल से उसको डिवाइड किया 57/50 रेज़ टू 2, 2500 डिवाइड बाय 3249। तो हमने इसको ये पूरा इक्वेशन को पहले तो मल्टीप्लाई किया देन डिवाइड किया, बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट मल्टीप्लाई देन डिवाइड, सॉरी फर्स्ट डिवाइड, जैसे 2500/3249 को पहले डिवाइड किया एंड देन मल्टीप्लाई किया एंड देन आंसर मिला 4200। थोड़ा बड़ा वैल्यू था एंड थोड़ा कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट है इसका, तो इफ़ यू वांट यू कैन अवॉइड इट, यस इफ़ यू वांट ओनली। मैं इसे भी एक बार प्रॉपरली लिख देती हूँ फॉर यू गाइस, फॉर्मूला भी, क्योंकि फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। A इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेज़ टू 2, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अभी हम फास्ट क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बिहाइंड, वी आर वर्किंग बिहाइंड। While entering into train, Anil was ahead of Shyam, who was ahead of Kiran. Anil was behind Shweta. Which of the following shows the correct order of entry into the train? अभी कभी कभी ना, if you know मराठी, so it will be very convenient for you. अगर आपको मराठी पता तो अनिल श्यामचा पुढे होता की जो किरणचा पुढे आहे, अनिल श्वेता मागे आहे, इसमें क्लियर बता दिया है। अनिल है श्वेता के पीछे और अनिल श्यामचा पुढे, तो अनिल है श्याम से पहले, तो श्याम अनिल के बाद में आएगा, श्वेता देन अनिल देन श्याम एंड देन किरण। तो 26 का आंसर क्या है? सी, श्वेता अनिल सी। अनिल वॉज अहेड ऑफ श्याम, यहीं पर है अनिल अहेड ऑफ श्याम, श्वेता वॉज बिहाइंड, अनिल वॉज बिहाइंड श्वेता, श्याम हु वॉज अहेड ऑफ किरण, मतलब किरण लास्ट में, ये तो पक्का है। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, फास्ट पढ़ो एंड आगे बढ़ो, ये लॉजिकल है। इफ़ LONQ इज कन्वर्टेड इनटू JMLO, then by the same principle what could be the correct alternative for the GDJM? So GDJM LONQ, इसके लिए ना पूरा ABCD ध्यान में रखो। L-2J होता है, IJKL -2J, then O-2M, N-2L, Q-2O। वैसे ही अगर हमारे पास G है तो G-2E, D-2B, J-2H एंड M-2K। हमारा आंसर आता है AEBHK, -2 वाले प्रिंसिपल से है ये। नाउ perception, which of the following is correct description of the statement given below? All animals die, human beings are animals, every human will die। अभी ये है डायरेक्ट इन्फरेंस, रिलेटेड है एक दूसरे से और हमने डायरेक्ट इसका कंक्लूजन दे दिया है। ये क्या होता है, ये क्या है? इन्फरेंस, परसेप्शन, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन, ये सब है ना प्रमाण है। प्रमाण माने प्रूफ्स एंड स्टडी ऑफ प्रमाण इज न्याय, ठीक है, न्याय इज स्टडी ऑफ प्रमाण। तो जो इन्फरेंस होता है उसे अनुमान बोलते हैं। इन्फरेंस का और एक नाम क्या है?
अनुमान, ठीक है। और अनुमान किस पर बेस्ड होता है? अनुमान इज बेस्ड थ्रू असम्पशन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स है और एनिमल्स मरते हैं तो ह्यूमन बींग्स भी मरते हैं, ये हमने अज्यूम किया है। देन परसेप्शन थ्रू सेंसेस, हमने ये 2 पेपर में भी डिस्कस किया था। और परसेप्शन ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। लाइक डायरेक्ट वाले जो हम डायरेक्टली सेंसेस के थ्रू देखते हैं, सेंसेस के थ्रू फील करते हैं। एंड इनडायरेक्ट जो रहते हैं मेमोरी बेस्ड। जैसे हॉर्स इज़ अ हार्बिवोरस एनिमल, फर्स्ट 2023 के पेपर में था। तो ये हमें पता है, ये हमने कभी तो भी देखा था हॉर्स को घास खाते हुए, तो उस पर से हमने ये कंक्लूड किया कि हॉर्स इज़ अ हार्बिवोरस। परसेप्शन, ओके। देन अदर आर कंपैरिजन, यानी कि कंपेयरिंग टू थिंग्स, कंपेयरिंग टू बीन्स, या कंपेयर करना 2 चीज़ों में, तुलना। एंड देन इम्प्लीकेशन यानी अर्थपति बेस्ड थ्रू रिलेशंस एंड इंडिकेशन, माने कि कोई चीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, या फिर हमें कुछ बताना है, तो कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो हम उसे इंडिकेट कैसे करते हैं, ओके। और एक होता है नॉन एप्रीहेंशन, यानी अनुपलब्धि, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ, I will make a short video about it on the pramanas, type of pramanas, and upload it on my channel, okay. अभी 29, which of the following diagrams show the correct relationship among the 3 terms woman, sister and mother? अभी वुमेन है, सिस्टर और मदर दोनों वुमेन है, ये तो कन्फर्म है। एंड देन उसमें से मदर भी रहेगी, कुछ सिस्टर रहेंगे, कुछ दोनों रहेंगी, दैट इज बी। जैसे कि ये वुमेन, ये मदर एंड दिस इज सिस्टर, ओके। अभी नेक्स्ट, which of the following is are the valid conclusions based on the statements given below? All players are aggressive, some politicians are aggressive, some politicians are not aggressive, some players are politicians, neither 1 nor 2। इसका आंसर डी है। क्यों? तो हम ये देखो, ये है एग्रेशन, ओके। इसमें यहाँ पर प्लेयर्स, क्योंकि ऑल प्लेयर्स एग्रेसिव बोला उन्होंने, तो प्लेयर्स। और क्या बोला? सम पॉलिटिशियंस आर एग्रेसिव, माने कि सिर्फ थोड़े से पॉलिटिशियन। अरे ओके, थोड़े से पॉलिटिशियंस एग्रेसिव है। तो बाकी कंक्लूजन में क्या बोला? सम पॉलिटिशियंस आर नॉट एग्रेसिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट डजंट फॉलो नेगेटिव कंक्लूजन, ये रूल होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं रहेगा, ओके। एंड सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियंस। अभी यहाँ पर देखो, ये दोनों के बीच में गैप है ना, सी, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सीधा सीधा नो रिलेशन। तो इसीलिए नीदर 1 नॉट 2। स्टार कर लीजिए एक पॉइंट। इफ ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन ऑल नेगेटिव कंक्लूजन्स विल बी फॉल्स, लाइक there can be no chance for negative conclusions in definite cases, and if all statements are negative then there will be no positive statement, no positive conclusion। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता, दोनों साथ में नहीं आ सकते। इन शॉर्ट 31 बेस्ड ऑन द चार्ट बार ग्राफ। सो इसमें क्या दिया है? क्वांटिटी, एक्सपोर्ट, रेवेन्यू जनरेटेड, ओके। इन विच ईयर द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट इज एक्सपोर्ट इज मैक्सिमम, ओके। तो अभी इसमें क्या करना है? कंपेयर करना है कि किस में सबसे ज़्यादा था। ऑप्शंस में 12, 13, 14 और 15, 3-4 साल दिए, तो सीधा 15 बाय 5 कितना होता है? 3। देन 15 बाय 35,
35/15 अप्रॉक्स कितना होगा 2.3 समथिंग 2.3 देन 40/20 कितना 2 देन आखिरी में कितना दिया है 50/30 इसका आंसर क्या आएगा अप्रॉक्स 1.67 कुछ तो भी आएगा देख लो। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा किसका है फर्स्ट 15/5 जो कि है 3 तो क्वेश्चन 2012 अपना आंसर आएगा 2012 आंसर आएगा दिखा। क्वांटिटी एक्सपोर्टेड रेवेन्यू जनरेटेड तो रेवेन्यू जनरेट क्यों डिवाइड बाय क्वांटिटी एक्सपोर्टेड ऐसा किया हमने। ऑप्शन ए 12 व्हाट इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन पर यूनिट रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग 11 to 15 मतलब उन्होंने 500 साल का पूछा है कि अरिथमेटिक मीन इसके ऊपर क्वेश्चन था लास्ट पेपर में भी बट हम एवरेज के बेसिस पर इसका आंसर निकालेंगे। मतलब देखो वेरी इजी हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है ए इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माने कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ले लेंगे क्वांटिटी ओके। तो अभी हम क्या करेंगे टोटल रेवेन्यू बाय टोटल क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी कितनी है एक्सपोर्टेड क्वांटिटी पहले काउंट कर लेते कितनी है 10 + 5 + 15 + 20 और ये कितनी है +30 टोटल कितना होगा 80 लाख क्वांटिटी हो गई हमारी 80 लाख। अभी रेवेन्यू जनरेटेड देंगे रेवेन्यू 20 और 20 + 15 + 35 + 40 प्लस ये कितना था 50 आखिरी वाला 50 था ना हाँ इसका टोटल कितना होगा 160 करोड़ मतलब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ अपना 160 ठीक है। अभी इसको एडिट करते हैं तो टोटल अपन ए इज इक्वल टू कितना लेंगे टोटल रेवेन्यू जनरेटेड 160 करोड़ डिवाइडेड बाय 80 लाख और हाँ इसमें ना ये भी ऐड होंगे यहाँ पर हमने देखो टोटल रेवेन्यू बाय 160 × 100 पर यूनिट पूछा इसीलिए डिवाइड बाय 80 क्या है 80 लाख क्वांटिटी जो है हमारी ये नीचे की जो थी तो ये क्वांटिटी अभी इनको मल्टीप्लाई किए 8 × 2 = 16 होता है तो 200 आंसर आ गया हमारा 200 रुपीज़। सो आंसर इज 200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 32 नाउ 33 से 34 among 800 students 220 failed in Marathi 300 failed in English 150 in Hindi 125 in both 70 in both Marathi and Hindi 60 in इंग्लिश एंड हिंदी 30 सब में। तो अभी यहाँ पर पूछा है 2 लैंग्वेजेस लास्ट ईयर भी लास्ट जो 21 का पेपर सॉल्व किया उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था जिसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था हमको वैसा ही फॉर्मूला इसके लिए भी निकालना है। मतलब अभी यहाँ पर क्या पूछा है यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है कि पहले दो में उसमें पूछा था पहले 1 में और फिर 2 में निकालना था। अभी यहाँ पर पहले 2 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे
दो में कितना है, जैसे मराठी एंड इंग्लिश में 125, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। क्या करना है, 125 प्लस 70 बोथ मराठी एंड हिंदी, प्लस 60 इंग्लिश एंड हिंदी। फिर इसको माइनस करेंगे 2 इंटू 30 से। 2 इंटू 30 क्या है, ये जो तीनों लैंग्वेज में फेल हुए उनका। तो आंसर क्या है, 255 माइनस 60, आंसर है हमारा 195। 195 आंसर आ गया है क्या ऑप्शन में 195? यस, ऑप्शन में है 195। इजी था ना। अभी हाउ मेनी फेल्ड इन ओनली वन लैंग्वेज, अभी एक ही लैंग्वेज में फेल हो गया कौन, तो उसके लिए हमें ना पहले ये निकलना होगा। अभी उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज में फेल हुआ है पूछा है, तो अभी हमें स्पेसिफिकली एक एक लैंग्वेजेस का लेना पड़ेगा। सपोज़ पहले हम लेंगे मराठी में 220 इंडिविजुअली फेल हुए थे, ओके। उसमें से माइनस 70 करेंगे जो मराठी एंड हिंदी में फेल हुए थे, और फिर माइनस कितना करेंगे, 125 जो हिंदी एंड इंग्लिश में फेल हुए थे, इंग्लिश एंड मराठी में फेल हुए थे। फिर उसको प्लस 30 करेंगे। 30 क्या है, प्लस 30 जो तीनों में फेल हुए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 55 जो मराठी में फेल हुए। अभी हम करेंगे ऐसे ही इंग्लिश में 300 टोटल है बताया है। फिर माइनस इंग्लिश के कौन से रिलेटेड है, फेल्ड इन इंग्लिश 125, फिर माइनस हिंदी और इंग्लिश में 60 प्लस 30, क्या आंसर आएगा, 250। देन अभी हिंदी में कितने हैं टोटल, 150 प्लस माइनस 70, फिर और जो इंग्लिश और हिंदी में है 60 माइनस, ये क्या हो रहा है भाई, माइनस 70 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 145। ओके, अभी हमने ये निकाल दिया हमारा आंसर्स, ये हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के निकाले। अभी उन्होंने पूछा सिर्फ एक ही इसमें फेल हुए, ऐसे कितने हैं ये टोटल, तो अभी क्या करना है, 55 प्लस 250 प्लस 145 इज इक्वल टू कितना है, 250। हमारा आंसर कितना है, 250 जो एक ही लैंग्वेज में एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए। अगर आप 195 प्लस 60 लेते हैं जो 2 में से फिर 3 में से ऐसे कुछ कर तो वो कम्प्लीटली स्टुपिडिटी होगी, आंसर नहीं आएगा। मैंने ट्राई किया था इसीलिए मैं बोल रही हूँ। Which of the following is the information about area of states and populations? Which is most thickly populated state? अभी area in square kilometer and population in lakh. ओके, तो हमें आंसर कैसे निकालना है, पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के थ्रू आंसर निकालना है। डेंसिटी is equal to total population divided by area। तो अभी हमने टोटल पॉपुलेशन कैसे निकालनी है,
अभी यहाँ पर 16 लाख है, देखो 16 लाख टोटल, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 80,000 की एरिया है, तो इसका क्या होगा टोटल 20। फिर ऐसे ही 10,000 10 लाख हुए क्या 5, 1 2 3 4 5 यस, डिवाइडेड बाय 50,000, इसका क्या आंसर आएगा 20। देन 4 लाख, ओके 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, इसका आंसर है 40। एंड देन लास्ट में कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, इसका आंसर कितना आएगा 60। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है डी, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसिटी किसकी है डी की। ओके अभी फास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यस ट्राई। In which year the Information Technology Act was enacted in India? It was in the year 2000. IT Act 2000. Who played an important role in developing the first supercomputer in India? It was Vijay Bhatkar. Yes. इन्होंने क्या बनाया था? Which was the first supercomputer? Param 8000 in 1991. ये था हमारा पहला सुपर कंप्यूटर। ओके एंड देन उन्होंने सेकेंड सुपर कंप्यूटर भी बनाया था परम 2000 इन 1998, विजय भटकर। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ मेड कंपल्सरी फॉर स्कूल्स टू एंटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑन द वेब पोर्टल नोन एज सरल विच इज़ सरल का फुल फॉर्म क्या है सिस्टमैटिक administrative reform for achieving and learning by students। ये फुल फॉर्म ऑफ सरल। ओके सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर अचीविंग एंड लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। ये कब ये एक इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिजिटल डाटाबेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स। इट इज़ द डिजिटल डाटाबेस रखने का एक वे है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कंपलसरी कर दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? It is National Academic Depository. Sorry, really sorry. सरल जो है ये डेवलप्ड हुआ है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एंड जो ये है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इसका है इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इट इज़ अ डिजिटल डाटाबेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स। सॉरी फॉर द ऊपर नीचे हो गया आंसर। 41 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट हजार्डस इट्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। बाकी केमिकल वेस्ट पेंट वेस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सारे हजार्डस होते हैं। 42 UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992 वॉज हेल्ड एट रियो de Janeiro, Brazil, also known as अर्थ समिट जो कब हुई थी 1992 में। काफ़ी फेमस है ये समिट।
43. Biomedical waste of human and animal tissues, organs and infected body parts are to be disposed using incineration. Waste treatment that involves combustion of organic substances contained in waste materials generate and help to generate electric power. Landslides hazards are common in the hilly region due to loss of vegetation, loss of soil, cutting of hill slopes, all of the above. Option D, all of the above. Also known as mass wasting. Landslide को क्या बोलते हैं? Mass wasting और down slope movement. What are the 5 modes of slope movement? They have falls, topples, slides, spreads and flows. Falls, topples, slides, spreads and flows. International Solar Alliance was established to promote the solar energy. Its headquarters is established at ग्वालपहरी गुड़गांव. ऑप्शन ए. एंड ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस कितने कंट्रीज़ का है? ऑफ 121 कंट्रीज इनिशिएटेड बाय इंडिया फॉर द कंट्रीज विच लाई कम्प्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट्स बाय 2022 एंड रिडक्शन 33 to 35% बाय 2030. इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो आती है. और किसने लॉन्च किया था? बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट इंडिया अफ्रीका समिट. टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम 12 years in Gurukul. Minimum 12 years. The University Education Commission recommended that there should be minimum dash working days excluding examination days in university and colleges. It is 180 days. Total 180 days होने चाहिए. The main role of UGC in higher education is to provide funds to universities. Option D. 48 का है ऑप्शन डी. नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी इज एस्टैब्लिश्ड एट नागपुर. कब एस्टैब्लिश किया था? इन 1958 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ फोकस ऑन वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल एंड कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करना. यस. नाउ लास्ट क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन judgment given in 1991 to make the subject dash compulsory in college curricula. It is environmental study. EVS. Compulsory 6 module course on EVS at all branches of UG degree. Taken after the PLI by an advocate. एक पब्लिक लिटिगेशन साइन किया था तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये हियरिंग दी थी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहनी चाहिए हर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में, डिग्री कोर्स में. ओके. होप यू लाइक द वीडियो. आई विल सून अपलोड द टेलीग्राम लिंक एंड चैनल लिंक जिस पर मैं ये PDF अपलोड कर दूँगी. आई नो इट्स क्वाइट लेट बट आई can't help it anymore. Thank you for the patience. Keep learning. All the very best.